بلیٹن میں خوش آمدید۔ آج ڈیووس میں غزہ امن بورڈ کے معاہدے پر دستخط کر کے پاکستان باضابطہ طور پر غزہ امن بورڈ کا رکن بن گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت تقریب میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ صدر ٹرمپ نے خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل کے بارے میں بات کی۔ وزیر اعظم نے انہیں فیلڈ مارشل کی نشست کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے مسکراہٹ کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خیر مقدم کیا۔ اس سے پہلے تقریب سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں جنگ ختم ہونے والی ہے، حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ بہت سے ملک غزہ امن بورڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے 8 ماہ کے دوران 2 ایٹمی طاقتوں پاکستان اور بھارت کے درمیان سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ ٹرمپ نے بتایا کہ جنگیں رکوانے کے بعد بہت سے ملکوں کے سربراہان ان کے دوست بن گئے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی ذکر کیا اور کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ان سے کہا کہ جنگ رکوا کر انہوں نے 1 کروڑ سے زیادہ جانیں بچائیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، امریکہ بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ غزہ امن بورڈ میں شامل نمایاں ملکوں میں سعودی عرب، ترکی، قطر، ہنگری، انڈونیشیا شامل ہیں۔ برطانیہ نے بورڈ میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ خارجہ سیکرٹری ڈویٹ کوپر کے مطابق یہ فیصلہ تقریب میں روسی صدر پوٹن کی ممکنہ شرکت کے پیش نظر کیا گیا۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی اور خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، ترک وزیر خارجہ اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے بھی ملاقاتیں کی۔ غیر رسمی ملاقاتوں کے دوران گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ڈیووس سے واپسی پر پاکستان آمد سے پہلے برطانیہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا طیارہ اب سے کچھ دیر پہلے لوٹن ایئرپورٹ پر اترا ہے۔ وزیر اعظم نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے بعد وہ لندن پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں غزہ امن بورڈ کے معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ امن بورڈ لانچ کرنے کے بعد ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے عالمی اقتصادی فورم میں غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ پیش کر دیا۔ کشنر نے کہا کہ غزہ کی 2 سالہ جنگ میں 90,000 ٹن گولہ بارود کے استعمال سے ہزاروں جانیں گئیں اور 60 ملین ٹن سے زیادہ ملبے کا ڈھیر بنا۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی۔ کشنر نے کہا کہ جیسا کہ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ سب غزہ کے لوگوں کے لیے ہوگا۔ کشنر نے بتایا کہ غزہ مختلف زونز میں تقسیم ہوگا۔ 3 سال میں 20 سے 30 لاکھ لوگوں کی رہائش والے شہر بنائیں گے۔ تعمیر نو کے عمل کا آغاز رفح سے ہوگا، جہاں ان مزدوروں کی رہائش کا انتظام ہوگا جو غزہ کی تعمیر نو کا کام کریں گے۔ انہوں نے کہا غزہ میں ملبہ ہٹانے کا کام پہلے ہی شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد نیا غزہ ہوگا، نئی امید کے ساتھ جہاں بہت سی صنعتیں ہوں گی۔ پر گلیات کے مختلف مقامات پر برف باری ہو رہی ہے۔ نتھیا گلی، ایوبیا، ڈونگا گلی، چھانگا گلی میں برف باری، جبکہ ایبٹ آباد شہر اور گردنواں میں وقفے سے بارش ہو رہی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ابرار رشید۔ جی، اس وقت میں نتھیا گلی کے قریب ڈونگا گلی کے مقام پر موجود ہوں۔ یہاں شام 6 ساڑھے 6 بجے کے قریب برف باری کا سلسلہ شروع ہوا۔ کبھی برف ہلکی ہو جاتی ہے، کبھی اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب تک گلیات کے مختلف علاقوں میں، جن میں نتھیا گلی، ڈونگا گلی، چھانگا گلی اور ایوبیا شامل ہیں، وہاں پر 5 سے 7 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ سڑک سے برف ہٹانے کا کام بھی جاری ہے۔ پھسلن کی وجہ سے بہت جگہوں پر سڑک کی صورتحال کافی خطرناک بتائی جاتی ہے۔ ابھی تک ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں علاقے کی تمام رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، البتہ جو مین سڑک ہے، جو ایبٹ آباد سے مری جانے والی جو شاہراہ ہے، اس سے برف ہٹانے کا کام ساتھ ساتھ جاری ہے۔ شمال مشرقی مغربی بلوچستان برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ چمن میں برف پڑنے سے گھر، درخت اور گاڑیاں برف سے ڈھک گئے۔ برف سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے۔ سوات، لوردی، شاگلہ، شگران، محمد اور اورگزئی کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری ہوئی ہے۔ مری، نتھیا گلی، ایوبیا، ڈونگا گلی، چھانگا گلی میں بھی ہلکی برف جاری ہے۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ہلکی اور تیز بارش سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ کہ شمالی علاقوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔ چمن میں 35 سال بعد شدید برفباری سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کوجک ٹاپ، شیلا باغ، خواجہ عمران، کوہ سلیمان، قلعہ عبداللہ، زیارت پشین، مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ، لورالائی اور دیگر علاقوں میں بھی وقفے سے برفباری جاری ہے۔ قلات میں سال کی پہلی برفباری سے موسم شدید سرد ہو گیا۔ برفباری کے باعث شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ NHA، PDMA اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مشترکہ کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ خوزدار، لزبیلہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں سوات، لوئر دیر، محمد اور اورگزئی اور مالاکنڈ میں بارش اور برفباری سے موسم شدید سرد ہو گیا ہے۔
कालाम, महूडन, गबीन जब्बा और अपर औरकजई में 2 फीट से जायद बर्फ पड़ने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, जबकि मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। अपर गलियात के मुख्तलिफ मकामात अयूबिया, डोंगा गली, छांगला गली में बर्फबारी, जबकि एबटाबाद शहर में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सखर, लाड़काना, घोटकी, खैरपुर, नवाबशाह, नौशेर फिरोज और जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सरगोदा, मुल्तान, डीजी खान, मियांवाली, लिया में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मरी में तेज़ हवाओं के साथ ज़बरदस्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी का सिलसिला आइंदे 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। मरी एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा से सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद शौकत अब्बासी से। जवाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है बर्फबारी के बाद? और जी देखिए, मैं इस वक्त मरी में हूँ और मरी में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। एक तवील इंतजार के बाद मरी में बर्फबारी हुई है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बर्फबारी इस वक्त हो रही है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हाईवे की मशीनें और नमक पाशी वाली गाड़ियाँ जो है साथ साथ रोड को क्लियर कर रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे दीगर जो सिक्योरिटी से रेलिवेंट और स्नो रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस वक्त फील्ड में है। पाकिस्तान आर्मी का स्पेशल यूनिट यहाँ पे डिप्लॉय है। उसके अलावा पंजाब पुलिस, रेस्क्यू 1122 और दीगर जितने भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे फील्ड में मौजूद हैं। एक्सप्रेस वे से टोल प्लाजा से मरी आने वाला जो रास्ता है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और लंबी कतारें लगी हुई हैं और यहाँ इस वक्त जो सियाह मरी में मौजूद है वो ज़बरदस्त अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ अगर मैं मौसम की मजीद बताऊँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का जो सिलसिला है आइंदा 2 रोज़ तक यूँ ही जारी रहेगा और साथ साथ जो मौसमियाती माहिरीन है उनका ये कहना है कि मरी और गलियात में जो बर्फानी तूफान का जो है वो भी खदशात मौजूद हैं और इस वक्त तेज़ हवाएं और ज़बरदस्त किस्म का मौसम लोग जो है बड़ी तादाद में है और एंजॉय कर रहे हैं। जी, और कराची में तेज़ हवाओं के साथ मौसमी सरमा की दूसरी बारिश हुई, जिसके बाद सर्दी में इजाफा हो गया। ये बारिशें मगरबी हवाओं के सिस्टम के तहत हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात कराची का दर्ज हरारत 7 से 9 डिग्री रहने का इम्कान है। कोयटा की सर्द हवाओं के बायस इतवार तक सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान है। कराची में गुल प्लाजा में छठे रोज़ भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि वाक़े में जहाँ तक अफराद की तादाद 67 हो गई। रिकवरी एंड सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि आज शाम मिलने वाली बाकियात की भी शनाख्त कर ली गई है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, क्या सूरत हाल है इमदादी कार्रवाइयों की? कितने अफराद की शनाख्त अब तक हो चुकी है? जी देखिए, गुल प्लाजा में लगने वाली आग का आज छठा रोज़ था और आज भी यहाँ से मलबा हटाने का सिलसिला जारी है। इसी दौरान जो है आज 2 मरतबा कुछ रिमेनिंग्स मिली और आज शाम को और उसके बाद फिर रात को कुछ रिमेनिंग्स जो है वो यहाँ से सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई, जिसके बाद 2 रिमेनिंग्स को जो है एक नौजवान है उसने उसको शनाख्त किया। उसका एक कहना था कि उसकी यहाँ पर शॉप है और वो उसके वालिद साहब और उसके एक मुलाजिम, उन दोनों को उसने उनके जले हुए कुछ सामान थे जिसमें घर की चाबियाँ, मोबाइल फ़ोन, पर्स और दीगर बिलोंगिंग्स थी जो कि जली हुई थी, उनकी मदद से उसने उन दोनों लाशों को शनाख्त किया। पुलिस काम ये बताते हैं कि कानूनी कार्रवाई के बाद ही उसको ये सारी रिमेनिंग्स उसके हवाले की जाएंगी। जबकि इसके साथ साथ डीसी साउथ जावेद नबी खोसो, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात की कंफर्म किया कि इस वाक़े में अब तक 67 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि उनके पास अब तक 67 पोस्टमार्टम्स रिपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। डंपरों के जरिए यहाँ से मलबा जो है वो KMC ग्राउंड पाक कॉलोनी के इलाके में मुंतकिल किया जाता है, जबकि यहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो धुआं भी उठना शुरू होता है। जिस वक्त यहाँ से डेब्रिस हटाया जाता है तो उस पर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड शॉवरिंग करता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि दीगर रेस्क्यू एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है। कटर के जरिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। अंदर जाके जो है वो बिल्डिंग को जल्द अज जल्द इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि इस जो डेब्रिस रिमूव करने का काम है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। जबकि यहाँ पर मुतासिर की भी बड़ी तादाद मौजूद है। शाम को भी जो है वो यहाँ पे डीसी साउथ ने एक लिस्ट जारी की थी जिसके मुताबिक 77 अफराद जो उनके पास मिसिंग पर्सन के तौर पर रजिस्टर्ड है। जी, बहुत शुक्रिया राहिल सलमान बता रहे थे वाक़े की जगह पर मौजूद हैं, वहाँ पर किस तरह से इस वक्त भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आज जो लाशों की बाकियात मिली थी उनकी भी शनाख्त की गई है और बहुत से लवाहिकीन पर अब तक कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। ये आग कैसे लगी? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी ने इमारत को खतरनाक करार देकर गिराने की सिफारिश कर दी है। देखिए काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट। सानह गुल प्लाजा को हुए 6 रोज गुजर गए। एक तरफ मुतासरा इमारत का मलबा उठाने और सर्चिंग का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानब तहकीकाती टीम ने भी एक रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसके मुताबिक गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी। मुबैना तौर पे दुकान में मौजूद बच्चे माचिस या लाइटर से खेल रहे थे, जिससे इब्तिदाई तौर पर आग दुकान में मौजूद सामान में लगी और फैलते हुए आग बिजली के तारों तक पहुँच गयी। आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद खारजी रास्तों की तरफ भागे। दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मची। हादसे के वक्त प्लाजा में ज्यादातर दुकानें खुली हुई थीं। इमारत की छत के रास्ते पर भी ग्रिल लगी हुई थी। आग से इमारत में मौजूद CCTV सिस्टम मुकम्मल तौर पर मुतासर हुआ है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो का बताना है कि लापता अफराद की फहरिस्त में अब तक 77 अफराद के नाम हमारे पास मौजूद हैं।
अभी तक जो हमारी कार्रवाई हुई है रिकवरी एंड सर्च की, उसमें तकरीबन अभी तक 67 डेड बॉडीज़ अभी आज जो हमने रिकवर की हैं वो 11 के करीब की हैं। टोटल जो है 67 के करीब डेड बॉडीज़ हम शिफ्ट कर चुके हैं जो डीएनए टेस्टिंग एंड फॉरेंसिक के लिए भेजे गए। जहां रेस्क्यू का अमल जारी है, वहीं एम जिना रोड पर बड़ी तादाद में सानहे के लवाहिकीन ने भी एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की मुश्तरका टेक्निकल कमेटी ने सदर में वाक़े गुल प्लाजा का तफसीली मुआयना मुकम्मल कर लिया। कमेटी ने गुल प्लाजा को इंतहाई महदूद करार देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की तकमील के बाद इमारत को मुनहदम करने की सिफारिश कर दी है। कैमरामैन नासिर अली, मोहम्मद साजिद और साथी रिपोर्टर किरण खान, राहिल सलमान और सुलेमान सादत खान के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि गजा ऑन बोर्ड में शमूलियत से पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां आप फ़लस्तीन और कश्मीर पर बात कर सकते हैं, क्योंकि गजा ऑन बोर्ड सिर्फ गजा तक महदूद नहीं है, ये आलमी अमन के लिए होगा। कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा पाकिस्तान कश्मीर पर बात नहीं कर सकेगा क्योंकि गजा अमन बोर्ड के चार्टर के मुताबिक ट्रंप गजा अमन बोर्ड में होने वाली गुफ्तगू का फैसला करेंगे और ट्रंप को वीटो का हक भी हासिल होगा। ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा तक महदूद नहीं है, ये आलमी अमन के लिए होगा। तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, आप अपना मौक़िफ़ पेश करें जो हमारा दरीना मौक़िफ़ है फ़लस्तीन पर, उनकी हक़ खुद इरादियत पर, फ़लस्तीनी रियासत पर, कश्मीर पर जो हमारा डीएनए का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है, फ़लस्तीन और कश्मीर दोनों, उसका आप प्लेटफॉर्म मिल गया। और तीसरा ईरान के ख़िलाफ़ जो जारियत है, आप उसमें हमने माजी में भी मुखालफत की थी, अब भी मुखालफत करें। शहबाज शरीफ साहब कश्मीर की बात कर सकते करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, उसमें उसको करनी चाहिए, डार साहब को करनी चाहिए, फील्ड मार्शल को करनी चाहिए। कश्मीर इज पार्ट ऑफ डीएनए, हम करेंगे। वहां पर कश्मीर की बात करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए इजाजत नहीं दी जाएगी कि अगर आप उसके चार्टर को पढ़ें, फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन और टाइम्स ऑफ इजराइल, इन्होंने उस चार्टर के कुछ लीक्ड चीजें सामने लेकर आए जिनके अंदर एक अहम नुक्ता ये भी है कि ट्रंप ये फैसला करेंगे कि उसके अंदर किस चीज के ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, एजेंडा क्या होगा और किस चीज के ऊपर बात नहीं की जा सकती, ये सोली उनका इख्तियार होगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी, बांग्लादेश ने अपनी फैसला सुना दिया। पाकिस्तान की भी बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत, वर्ल्ड कप बॉयकॉट पर पाकिस्तान भी गौर कर सकता है। बांग्लादेश के वज़ीर खेल आसिफ नजरुल ने इस बात का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने खिलाड़ियों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, उनका कहना था, जिसके बाद आसिफ नजरुल ने दो टोक ऐलान किया कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश के वजीर खेल आसिफ नजर ने इस बात का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मीडिया से गुफ्तगू से कबल आसिफ नजर और खिलाड़ियों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद आसिफ नजर ने दो टोक ऐलान किया कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। वर्ल्ड कप न खेलने का फैसला हमारी हुकूमत का है। हमने हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस कराने की दरख्वास्त की है। भारत में हमें सिक्योरिटी खतरात का सामना है। आसिफ नजर का कहना था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी हैं, ICC ने उनको तस्लीम नहीं किया, जबकि भारत ने हमें कायल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। आसिफ नजर ने कहा कि हम खेलना चाहते हैं, हमें अब भी उम्मीद है कि ICC हमारे मौक़िफ़ को सुनेगी और तस्लीम करेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम के मुताबिक इस मामले को आखिर तक नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा हक है, हम ICC से दोबारा राब्ता करेंगे, भारत नहीं जाएंगे, श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के चैंपियन लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल अफराद को PSL 11 में भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। ये अफराद भी माशरे का अहम हिस्सा हैं, इनके नाम एक मैच कराने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। PSL की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने लाहौर में खुसूसी अफराद के लिए कायम अदारा बहाली माजूरा का दौरा किया। अदारे के सदर सईद शमसी और दीगर ओहदेदारों की हमरा आतिफ राना ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। वो बच्चों के क्लास रूम्स भी गए, बच्चों को लाहौर कलंदर्स की शर्ट्स दी। हम कोशिश करेंगे पूरी दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान के एक शहर लाहौर में किस कदर ज़बरदस्त काम हो रहा है 1957 से। सो कोशिश और ख्वाहिश हमारी होगी कि इंशाल्लाह इन बच्चों को अपने साथ मैच भी दिखाएं। अदारे के मुंतज़मीन ने लाहौर कलंदर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो हमारे काम को सराहने के लिए यहाँ आए। इससे खुसूसी अफराद की हौसला अफजाई होगी और मुआशरे के दीगर अहम लोग भी आगे आएंगे। हम समझते हैं कि ये लोग आएंगे तो लोगों को पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं और हम लोगों की ज़्यादा खिदमत कर सकें। इतनी फैसिलिटीज़ एक छत के नीचे हम दे रहे हैं फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। हाईली एस्टीम्ड पर्सनैलिटीज़ आती हैं तो वो उनके देखने वाले, उनको फॉलो करने वाले इम्प्रेस होते हैं, मोटिवेट होते हैं, इंस्पिरेशन की एक सोर्स बनती है। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का कहना है कि वो माजी की तरह आइंदा भी फलाही अदारों और खुसूसी अफराद के साथ अपने तल्लुक़ को इसी तरह जुड़ा रखेंगे।
कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। सानिया गुल प्लाजा में जांबाज अफराद की याद में आर्ट्स काउंसिल कराची में शमें रोशन की गई। दुआया तकरीब भी मुनाकिद की गई। तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राबिया। सानिया गुल प्लाजा, जिसने इसके बारे में सुना हर किसी को गूज़बम्स हुए। ये खबर ही ऐसी थी, जिसने इसका सुना उसकी आंख में आंसू आए। आर्ट्स काउंसिल कराची ने आज यहाँ पे विजिल का इनेकाद किया, जिसमें शमें रोशन की उनकी याद में जो सानिया गुल प्लाजा में शहीद हुए हैं। उसमें बच्चे शामिल थे, औरतें शामिल थी, पूरी फैमिली शामिल थी। ये कोई छोटा वाक़या नहीं था, ये काफ़ी बड़ा वाक़या था और ये फ़ौरन से भूला भी नहीं जा सकता। हर आँख अश्बार है, सबके सीने भरे हुए हैं। एक बड़ा वाकया हुआ है और ये नेशनल ट्रेजेडी है। जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे के लिए ये चीज़ चाहिए कि हमारी जो पुरानी इमारतें हैं या आगे जो हमारी बन रही हैं इमारतें हैं, हम उसमें फायर ब्रिगेड का कुछ ऐसा राह अमल हम उसमें रखें कि अल्लाह ना करे अगर इनकेस वहाँ आग लगती है तो हम फ़ौरन उस पर काबू पा लें। खुदा का वास्ता आने वाले वक्त में कुछ कर लें, ये हाल दोबारा ना हो। इतना बड़ा शहर है कराची और कितने हैं फायर ब्रिगेड, इनमें तमाम चीज़ें मुहैया करें इनको। यहाँ पे लोगों ने बताया कि अब तनकीद करने से कुछ नहीं मिलेगा। हर इमारत की प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन हो, देखा जाए कि उसमें SOPs फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ राबिया, जियो न्यूज़, कराची। भारत में हिंदू तंजीम बजरंग दल के जत्थे ने मसीही पादरी को तशद्दुद का निशाना बनाया, ज़बरदस्ती गाय की गलाजत खाने पर मजबूर किया और जय श्री राम के नारे लगवाकर उनके चेहरे पर सिंदूर मल दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये पादरी अपने अहल खाना और दीगर अफराद के साथ एक घर में दुआया इज्तिमा में शरीक थे। हजूम ने इस इज्तिमा पर एतराज़ किया, सबको लाठियों से बुरी तरह मारा, पादरी के गले में जूतों का हाथ डालकर उन्हें गांव में घुमाया। पुलिस ने पादरी को बचाने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की। भारतीय जरीदे द वायर ने लिखा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल का नौजवानों को इंतकाम की जहनीत अपनाने का बयान भारतीय कौमी सलामती पॉलिसी पर गहरे असरात का हामिल हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर को इंतकामी कार्रवाई के तौर पर पेश करना इस बात का सबूत है कि भारत की कौमी सलामती पॉलिसी दिफा की बजाय बदले की सोच के ज़ेर असर आ चुकी है और ये बात खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है और अजीत दोवल की इंतकामी डॉक्ट्राइन दानिस्ता तौर पर जंग छेड़ने का बहाना बन सकती है, जिससे खित्ते में जौहरी कशीदगी में इजाफा होगा। मारूफ तज्जियाकार और स्कॉलर अहमद हसन अल अरबी ने कहा कि नौजवानों को दहशतगर्द अनासर और उनके गुमराहकुन बयानी से आगाह करना ज़रूरी है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए फितना और खवारिज को नज़रियाती बुनियाद को समझना और इसे फ़िक्री सतह पर निशाना बनाना नागुज़ीर है। ISPR विंटर इंटर्न प्रोग्राम के तलबा से बात करते हुए उन्होंने कहा, फितना और खवारिज के पीछे भारत का किरदार वाज़ेह है। बलूचिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को भारतीय सरपरस्ती हासिल है।